Hello everyone. Today in the class 11th we are going to do some work regarding the main characters and the message and some word meaning. You can make the key page by writing these characters and the message. That is enough for your key page, and you have already read about these characters in your introductory part. Okay, we are not afraid to die if we can live together. The first one character is the narrator, that is the captain of the ship. Second one is Mary, that is she is the wife of the narrator. Her name is Mary. Next is the Jonathan. John is the short name of him, 6-year-old son of the narrator. Suzanne, 7 years old daughter of the narrator. Larry Weasel and the Hub Caesar, they are the helper, American crewman hired from the Cape Town, and the Hub Caesar, Swiss crewman hired from Cape Town. These are all the main characters in this lessons, and write these characters on your key page. And after this, there is the message of this lesson. The story is about the positive attitude and the endurance shown by the courageous family of the author in the face of the storm that had endangered their survival. ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज़ अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड, कि लाइफ में पॉजिटिव एटीट्यूड की कितनी अहमियत होती है उसके बारे में है. एंड्योरेंस क्या होती है? सहनशीलता. कितना धैर्य रखना, कितनी सहनशीलता है, किसने दिखाई? ये शोन बाय द करेजियस फैमिली, जो बिल्कुल साहसी फैमिली होती है ऑथर की. कब? इन द फेस ऑफ द स्टॉर्म, उस तूफान में, जिस तूफान ने दैट हैड एंडेंजर्ड देयर सर्वाइवल, सर्वाइवल जिंदा रहना, उनके सर्वाइवल को खतरे में डाल दिया था. कि ये जो स्टोरी है पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में है और एंड्योरेंस, सहनशीलता के बारे में है, जो कि ऑथर की फैमिली ने दिखाई. कैसी फैमिली है? करेजियस फैमिली है. जब स्टॉर्म आया, ठीक है. The most important lesson that we learn from such hazardous experience when we are face to face with death is not to lose hope under any circumstances. इसमें सबसे जो हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, जो हमने सीखा है कि जब भी फेस टू फेस हो डेथ के साथ, और नॉट टू लॉस होप, कि हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किसी भी परिस्थिति में. एट टाइम्स लाइफ प्रेजेंट्स वेरी डायर सिचुएशंस, जो लाइफ है बहुत ही डायर सिचुएशंस प्रेजेंट करती है. बट इफ़ वन इज़ ऑप्टिमिस्टिक अबाउट फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, लेकिन कोई भी यदि ऑप्टिमिस्टिक है यानी कि आशावादी है किस चीज़ के रिगार्डिंग? फाइंडिंग द सॉल्यूशन एंड द ओवरकम्स द ओड्स, और जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ हैं उनके सॉल्यूशन पाने के रिगार्डिंग, वन विल ऑलवेज बी सक्सेसफुल, तो हमेशा क्या होगा? सक्सेसफुल होगा. दैट्स ऑल अबाउट द message of the story, and you will write this message on the key page also. And now there are some word meaning, important word meaning of this chapter beta. The first one is from the page number 15, that is the scream, means cried, chillana, and you will all write these in your fair notebook. And the you can think that the word meanings are always most important things, because it creates the base of your strong English for the next class and the same class also. So you will write all these word meaning with English to English and Hindi also, if given here in your fair notebook. The first one is screamed, cried, chillaya, deck, split, foam, or the roof. Okay, that is the part of a ship. Smashed, broken, एंड स्क्रैम्बल, ट्राई टू कैच, पकड़ने की कोशिश की, झपट कर वो भी. हैच, अ स्मॉल ओपनिंग इन द फ्लोर, दरार को कह सकते हैं. टिम्बर्स इज यूज्ड, वुड होती हैं, वुड यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पस, स्पेशली जो बिल्डिंग्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं इमारती लकड़ियाँ. क्रेजी, ओड, बेढंग तरीके से. एंड स्टारबोर्ड, राइट हैंड साइड ऑफ अ शिप, जलपोत यानी कि शिप का जो दाहिना भाग होता है उसको बोलते हैं. बगल्ड, स्वोलन, फूल गया. स्लोस्ट, मूव अराउंड द वाटर.
पानी की तरफ चलना। बंक स्लीपिंग बर्थ, बंक क्या होता है, स्लीपिंग बर्थ होता है स्थान। अ बिट अ लिटल, बम्प स्वेलिंग यानी कि कोई चीज़ फूल जाना, उसको बम्प बोलते हैं। एंड हैमर अ टूल फॉर ड्राइविंग नेल्स, हथौड़ी जो आम घरों में भी यूज़ होती है। स्क्रूज अ मेटल फास्टनर, पेच यानी कि कैनवस वाटर प्रूफ मटेरियल, थिक क्लॉथ और हेम्प और द फ्लैक्स, किरमिच जिसको बोलते हैं, किरमिच आपको इतना नहीं समझ में आएगा, कैनवस वाटर प्रूफ मटेरियल। एंड बेस्ड ओपन, स्ट्रक ओपन फोर्सफुली, किसी चीज़ को ज़बरदस्ती खोलना। स्ट्रेच स्प्रेड आउट, फैलना। हैच कवर्स द लीड्स टू कवर द ओपनिंग इन द डेक। गैपिंग ओपन, डिफ्लेक्टेड टर्न टू द अनदर डायरेक्शन यानी कि दूसरी दिशा में रास्ता मोड़ देना। डेबिर्स मलबा कचरा होता है। स्कैटर्ड ब्रोकन थिंग्स, बिखरी हुई और टूटी हुई चीज़ें। थ्रेटिंगली इन एन अलार्मिंग मैनर, खतरनाक तरीके से। एंड रेंच्ड, एक होता है ड्रेंच, एक होता है रेंच। रेंच मीन्स पुल्ड ऑफ, ट्विस्टेड खराब हो गया। डिंगिंग्स स्मॉल बोट्स ऑन अ शिप, छोटी छोटी बोट्स को बोलते हैं। एंकर अ पीस ऑफ हैवी मेटल, लंगर इट्स आल्सो अ पार्ट ऑफ शिप। चार्ट रूम वेयर मैप्स यूज्ड फॉर द नेविगेशन आर kept. Dragged on past with difficulty, steering the mechanism और द व्हील टू कंट्रोल द डायरेक्शन। स्टेयरिंग व्हील्स तो आपने ये देखा होगा, कार वगैरह में भी होता है, सभी व्हीकल्स में होता है एंड शिप में भी होता है ये। Mayday calls radio signals used by the ships in distress calling for help. रिमोट फार ऑफ, दूर होना। स्वोलन अगेन, हेयर सूज गया, कोई भी चीज़ फूल जाना। बम्प आया था अभी लास्ट। अलार्मिंग, चौंकाने वाला। डेंजरसली यानी कि बहुत ज़्यादा खतरनाक। एनॉर्मस वेरी बिग, बहुत बड़ा। सफिशिएंटली एनफ, काफ़ी होना। एडिक्वेट भी काफ़ी होना। बेटा जो यहाँ पर डबल मीनिंग भी दिए हुए हैं, यू विल राइट बोथ द मीनिंग, डोंट आस्क मी मैडम दोनों ही लिखने हैं, यू हैव टू राइट both the meanings. Okay, sufficiently have two meanings, that is enough, and the adequate means काफ़ी होना। in rotation, turn by turn, बारी बारी से, जैसे रोटेशन में आप क्लास में सीट में भी बैठते हो। and tremendous big, अधिक। leak opening, छेद होना किसी चीज़ में, लीकेज होना। and here again a one page for the word meaning। rib, रिब आपको पता है इट्स अ पार्ट ऑफ बॉडी, और रिब की जो शेप है यहाँ पर मेंशन है वो वन ऑफ द शिप्स कर्व्ड टिम्बर्स, जो कर्व्ड होती है ना, मुड़ी हुई घुमावदार लकड़ी, उसको बोलते हैं रिब। स्मैश टू द नील, कंप्लीटली ब्रोकन, बिल्कुल तोड़ देना। स्टारबोर्ड हल, द लोअर पार्ट ऑफ द राइट साइड ऑफ द शिप। कैलकुलेटेड, एस्टिमेटेड यानी कि अनुमान लगाना। पिन प्रैक्स वेरी स्मॉल डॉट्स और आइलैंड्स, छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल आइलैंड्स बिल्कुल छोटे होते हैं जहाँ पर, इसमें आएगा जैसे 28 पीपल लिविंग ऑन अ आइलैंड, दैट इज़ द वेरी स्मॉल। एबेटेड, कूल डाउन, बहुत ठंडा। ग्रीव लेस सीवियर, बहुत कम गहरा होता है जो। होइस्ट फ्लटर, फहराना। स्लिम वेरी थिन, you know all about the slim word। एक्सुलरेज, you know about this। अतिरिक्त, एडिशनल। मेन मास्ट, प्राइम पोल, प्रमुख मस्तूल। प्रेशर स्पूल्स, रिगिंग, रोप्स, रस्सियों को बोलते हैं। पुल अपार्ट, सेपरेट, अलग कर देना। कॉन्ड, सेव्ड फ्रॉम डैमेज, डैमेज से बचाना। रेस्पाइट, रिलीफ, और द इंटरवल्स ऑफ द रेस्ट, उसको रेस्पाइट बोलते हैं। एंड डिट्रियोट, ग्रो वर्स, वर्सन, ज़्यादा बैड, मतलब जो कोई चीज़ बैड होती है बहुत ज़्यादा हाई लेवल में, दैट इज़ द डिट्रियोटिड। डॉन डो ब्रेक, इसको याद रखना अच्छे से। डॉन डो ब्रेक, सुबह का जो समय होता है उसको बोलते हैं। एंड डेस्पेरेट, होपलेस। रिस्पॉन्ड, रिप्लाई। हैव टू लिफ्ट, रेज विद ग्रेट एफर्ट, बलपूर्वक खींचना। एंड इम्प्रूवाइज, इम्प्रूव से बना है। टू यूज़ वट एवर इज़ अवेलेबल, काम चलाओ। एंड एंकर, अ हैवी मेटल ऑब्जेक्ट विच हेल्प टू कीप अ शिप इन वन प्लेस लंगर, किसको बोलते हैं, एंकर को। बैरल्स, ड्रम्स को बोलते हैं। पैराफिन, यू नो वैक्स, मोम होता है। प्लैंक्स, लॉन्ग फ्लैट पीस ऑफ द स्वेन टिम्बर, तख्ते, लकड़ी के बड़े बड़े फट्टों को बोलते हैं। रोड आउट, सर्वाइव्ड, बच निकलना। ईजिंग, कूल डाउन। ओके, एंड लास्ट वन इज, दिस वन इज द लास्ट पेज। एंड अ सेक्सेंट, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग, कौन की दूरी मापने का एक यंत्र होता है ये। ड्रिफ्ट, स्लो करंट्स, मंद बहाव होना, बिल्कुल जैसे पानी का बिल्कुल फ्लो स्लो हो, दैट इज़ द ड्रिफ्ट। स्लिट्स, थिन ओपनिंग्स, हल्की सी झीरी, दरार आना। एंड कैरिकेचर्स, फनी
रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पर्सन। जैसे आपने देखा होगा कार्टून टाइप्स में हम थोड़ा सा पिक्चर बना देते हैं अपने पॉलिटिशियंस वगैरह की, दैट इज़ द कैरिकेचर। कंपास एन इंस्ट्रूमेंट विद मैग्नेटाइज्ड नीडल्स, ये तो आपको सभी को ही पता है, दिशा माप दिशा सूचक यंत्र होता है ये। वेरिएशन चेंजेस इंडिकेटेड डायरेक्शन, ठीक है, वेरिएशन अलग अलग चेंजेस होता है डायरेक्शन को इंडिकेट। कन्विक्शन फर्म बिलीफ, यानी कि स्ट्रॉन्ग विश्वास होता है जो, दृढ़ विश्वास। डोस्ट ऑफ हल्की नींद को बोलते हैं ऊँघने को लेकर। स्लेप ऐसे हल्की नींद, ऐसे बैठे बैठे सोना, दैट इज एक होता है प्रॉपर लेट के सोना और एक होता है बैठे बैठे हल्की सी नैपिंग करना, स्लैप। टोजल्ड रफ डिसऑर्डरली बिखरे हुए बाल। हग एम्बेरस गले लगाना। कोस्ट स्पोक जॉइंटली एक साथ बोलना। एंड स्टार्क बेयर स्टिफ नेक बिना किसी चीज़ के। एंड ब्लीक चीयरलेस। लिटिल वेजेशन नो ग्रीनरी। और बैरन, बैरन होता है बंजर बिल्कुल, विदाउट एनी ग्रीनरी, थोड़ी बहुत मात्रा में वनस्पति होना। एंकर ड्रॉप द हैवी आयरन पीस। ऑफ शोर नियर द शोर, तट के निकट बिल्कुल। इनहेबिटेंट्स रेजिडेंट निवास की। ऑप्टिमिस्टिक होपफुल आशावादी। डायरेस्ट एक्सट्रीम मोस्ट हॉरिबल सबसे ज़्यादा भयंकर। स्ट्रेस प्रेशर स्ट्रेन। एंड क्रूशियल क्रिटिकल टाइम बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस का टाइम होना। सब्सिक्वेंटली कमिंग आफ्टर किसी चीज़ के बाद में आना। और रिक्योरिंग होता है कमिंग अप अगेन एंड अगेन, कोई चीज़ दोबारा दोबारा आना और कोई चीज़ एक के बाद एक आना, दैट इज़ द सब्सिक्वेंटली। क्लोट हाफ सॉलिड लंप, ढेला होता है लेकिन वो हाफ सॉलिड होता है, थोड़ा नरम और थोड़ा सख्त, दैट इज़ द क्लोट, रकत का थक्का। दैट्स ऑल अबाउट दीज वर्ड मीनिंग बेटा, and you will write all these word meaning for strong base of your English for the next class or the same class in your notebook. Till then stay healthy and wealthy and do your work proper with positive attitude. Okay bete.